Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. So today I will teach you about breech presentation. Breech presentation is a type of malpresentation. So first we will see the fetal presentation. What does mean by fetal presentation? Fetal presentation refers to the part of fetus that is overlying the maternal pelvic inlet. फीटल की प्रेजेंटेशन हम उसे कहते हैं फीटस का जो पार्ट मैटरनल पेल्विक इनलेट पे ओवरलाई करता है उसे फीटल की प्रेजेंटेशन कहा जाता है. नाउ लेट्स सी द माल प्रेजेंटेशन. एक्सेप्ट वर्टेक्स ऑल आर कंसीडर्ड माल प्रेजेंटेशन. जो सिफेलिक या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है उसके अलावा जितनी भी प्रेजेंटेशंस होती हैं उनको हम माल प्रेजेंटेशन में कंसीडर करते हैं. फीटस का हेड अगर पेल्विक इनलेट में है तो हम उसे नॉर्मल मानेंगे. अगर हेड के अलावा और कोई भी प्रेजेंटेशन है तो वो कंसीडर होती है माल प्रेजेंटेशन में. नाउ वी कम टू द माल पोजीशन. Abnormal positioning of the fetus at the time of delivery is malposition. डिलीवरी के टाइम पे फीटस की एबनॉर्मल पोजीशन होना माल पोजीशन कहलाता है. नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ माल प्रेजेंटेशंस. सो द फर्स्ट इज ब्रीच प्रेजेंटेशन, सेकेंड इज फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, shoulder presentation, compound presentation, unstable lie, and occipito-posterior presentation. All these are the types of malpresentation. So among these malpresentation, we will see the breech presentation. Now what does mean by breech presentation? It is the presentation in which the fetus in a longitudinal lie with the buttocks or feet closer to the cervix. ब्रीच प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन होती है जिसमें फीटस लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है बट उसके बटक्स या फीट वो सर्विक्स के पास होते हैं. लाई लॉन्गिट्यूडनल ही होगा फीटस का, पर जो प्रेजेंटिंग पार्ट होंगे वो बटक्स या फीट होंगे. बटक्स या फीट क्लोज होंगे सर्विक्स से, उसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं. अब हम बात करते हैं इसके इंसिडेंस की. 3 to 4% ऑफ फीटस प्रेजेंट बाय ब्रीच एट टर्म. टर्म पे 3 to 4% फीटस ब्रीच प्रेजेंटेशन में होते हैं. Now what is term pregnancy? When the pregnancy completes 37 weeks, so it is known as term pregnancy. So at term 3 to 4% of fetus present by the breech. 5% at 34 weeks. Usually per 103 cases we can see of breech presentation. 20% cases present at 28 weeks of pregnancy. The higher incidence of breech in earlier week of pregnancy. ब्रीच प्रेगनेंसी का इंसिडेंस हाई रहता है अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में. नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन. सो ब्रीच प्रेजेंटेशन इज ऑफ टू टाइप: complete breech and the incomplete breech. Complete breech presentation is a common type of breech presentation. 25% more common in multipara women. Complete breech presentation 25% commonly पाई जाती है multiparous women's में. Multiparous women's वो women's who have given at least one previous birth. So, the chances of complete breech presentation is common, 25% more common in multiparous women. In this breech presentation, the attitude is full flexion. The fetus is in fully flexed attitude. Thighs of the fetus are flexed on the abdomen
and legs are flexed at the knees. And the presenting part is buttocks and feet. कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन में फीटस का जो एटीट्यूड होता है वो फुल फ्लेक्शन वाला होता है. फीटस के जो थाइज होते हैं वो एब्डोमेन की तरफ फ्लेक्स होंगे, लेग्स फ्लेक्स होंगी नीज पे, और प्रेजेंटिंग पार्ट बटक्स और फीट रहते हैं. अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन की. इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन इज ड्यू टू varying degree of extension of thighs or legs at the podalic pole. Incomplete breech presentation किसकी वजह से होता है? फीटस के थाइज और लेग का पोडालिक पोल पे एक्सटेंशन होने की वजह से इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है. इसके फर्दर 3 वेराइटीज पॉसिबल हैं. फर्स्ट है फ्रैंक ब्रीच, या जिसे ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग्स भी बोला जाता है. सेकेंड इज फुटलिंग ब्रीच. थर्ड इज नी प्रेजेंटेशन. सो फर्स्ट वी सी फ्रैंक ब्रीच. सो इन दिस thighs are flexed on trunk and legs are extended at the knee joint. The presenting part consists of 2 buttocks and external genitalia. This frank breech or breech with extended legs, this is more common in primigravida mother. Around 70% cases are seen. So in frank breech presentation, the thighs of the fetus are flexed on the trunk. Legs are extended at the knee joint. So the presenting part consists of 2 buttocks and external genitalia. Guys, you can see in this diagram A is showing you frank breech or breech with extended legs. Here you can see the 2 buttocks and external genitalia can be the presenting part. Now see the footling breech. In footling breech, both thighs and legs are partially extended, which bring the legs to present at the brim. Footling breech presentation में दोनों thighs और legs partially extended होते हैं, जिसकी वजह से जो फुट होंगे, जो legs होंगे, वो present करेंगे brim पे. Let me show you the diagram. As you can see in this diagram, footling breech presentation is shown. Now the knee presentation. In this knee presentation, thighs are extended, but knees are flexed, bringing knees down to present at the brim. नी प्रेजेंटेशन में जो थाइज होते हैं फीटस के वो एक्सटेंडेड रहते हैं, बट जो नीज होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं, जो कि ब्रिंग करते हैं नीज को डाउन. जब थाइज एक्सटेंडेड रहेंगे, नीज फ्लेक्स्ड रहेंगे, तो जो नीज हैं वो ब्रिम के अंदर डाउन प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि नी प्रेजेंटेशन हो जाती है. सो गाइज, हियर यू कैन सी द नी प्रेजेंटेशन. आप देख सकते हो यहाँ पेल्विस के अंदर जो नीज हैं वो नीचे की तरफ है, नी प्रेजेंटेशन है, इसे नी प्रेजेंटेशन कहा जाएगा. गाइज, नाउ लेट्स सी द इटियोलॉजी ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन. फर्स्ट फैक्टर इज प्रीमेच्योरिटी. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज प्रीमेच्योरिटी. If the baby is premature, the chances of breech presentation increases. Second factor, factors preventing spontaneous version. See, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अपने आप वर्जन हो जाता है बेबी का. अगर वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है तो सिफेलिक में चेंज हो जाती है उसकी पोजीशन. बट कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो स्पॉन्टेनियस वर्जन होने में रुकावट बनते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं स्पॉन्टेनियस वर्जन को. वो है ट्विंस का होना, ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग्स,
कोड का शॉर्ट होना, शॉर्ट कोड, आईयूडी ऑफ फीटस, इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द फीटस, ये फैक्टर्स हैं जो स्पॉन्टेनियस वर्जन को प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं। थर्ड फैक्टर है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस में बेबी का हेड बड़ा होता है, बिग साइज का होता है, तो वो बिग साइज का होगा तो वो फंडस में भी वाइड जगह लेगा, ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, तो हाइड्रोसिफेलस की वजह से भी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, अगर पेल्विस का साइज कम है, पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, नॉर्मल गायनेकॉइड शेप में नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड है, तो भी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है। और लास्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर इज प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो भी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है। आफ्टर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स वी कम टू द डायग्नोसिस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? फर्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी करके उसमें पता चल जाता है प्रेजेंटेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, पेल्विक ग्रिप, अगर हम एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं उसमें पेल्विक ग्रिप एम्प्टी मिलती है जब पाल्पेशन किया जाता है, क्योंकि जो सॉफ्ट इरेगुलर बटक्स हैं वो इंगेज हो नहीं पाते, जैसे कि वर्टेक्स हो जाती है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जैसे कि हेड हो जाता है, तो इस वजह से जब पेल्विक ग्रिप को देखा जाता है पाल्पेशन के दौरान तो वो एम्प्टी मिलती है। ऑस्कल्टेशन जब हम करेंगे, यूजुअली जो फीटल हार्ट साउंड होता है वो अबव द अम्ब्लाइकस सुनाई देता है, बट अगर फ्रैंक ब्रीच होगी तो वो अम्ब्लिकस के लेवल पे या बिलो द लेवल ऑफ अम्ब्लिकस भी मिल सकता है। तो अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी तो नॉर्मली हमें फीटल हार्ट साउंड जो है वो अम्ब्लिकस लेवल से अबव, ऊपर की तरफ मिलेगा, बट अगर फ्रैंक ब्रीच होती है तो हमें अम्ब्लिकस के लेवल पे या बिलो द अम्ब्लिकस के लेवल पे भी फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे सकता है। दिस इज फ्रैंक ब्रीच, लेट मी करेक्ट इट, फ्रैंक ब्रीच। ओके, सो ये डायग्नोसिस के तरीके हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन को। यूएसजी से पता चल जाता है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से पेल्विक ग्रिप जो है एम्प्टी मिलती है, और ऑस्कल्टेशन करने पे फीटल हार्ट साउंड हमें नॉर्मली अबव द लेवल ऑफ अम्ब्लिकस सुनाई देगा ब्रीच प्रेजेंटेशन में। ठीक है, आफ्टर इटियोलॉजिकल फैक्टर अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। मैकेनिज्म ऑफ लेबर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम मानते हैं कि लाई लॉन्गिट्यूडनल है, एटीट्यूड कंप्लीट फ्लेक्शन है, प्रेजेंटेशन ब्रीच है। जैसे कि नॉर्मली आप मैकेनिज्म ऑफ लेबर ऑफ नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या रहता है, लाई लॉन्गिट्यूडनल, एटीट्यूड कंप्लीट फ्लेक्शन, प्रेजेंटेशन वर्टेक्स, वैसे ही अब हम ब्रीच प्रेजेंटेशन का मैकेनिज्म ऑफ लेबर देख रहे हैं। सो प्रेजेंटेशन ब्रीच है। पोजीशन हमने इसमें मानी है लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर, LSA। नॉर्मली जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है तो कौन सी होती है पोजीशन, LOA या ROA, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर या राइट ओसिपिटो एंटीरियर। यहाँ पे हमने लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर इसलिए मानी है बिकॉज ब्रीच प्रेजेंटेशन है। फिर डिनोमिनेटर क्या होगा ब्रीच में, सैक्रम। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, एंटीरियर बटक। इंगेजिंग डायमीटर कौन सी होगी, बायट्रोकेंट्रिक डायमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और मैकेनिज्म ऑफ लेबर की जो प्रिंसिपल मूवमेंट्स हैं वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में 3 जगह पे टेक प्लेस करेंगी, बटक्स पे, शोल्डर्स पे और हेड पे। सो फर्स्ट सी द डिलीवरी ऑफ बटक्स। Engagement occur in one of the oblique diameter of inlet. Pelvic inlet की oblique diameter में engagement occur होती है। The engaging diameter is bitrochanteric with sacrum directed toward iliopubic eminence. जो इंगेजिंग डायमीटर होगी वो बायट्रोकेंट्रिक होगी, जिसमें कि सैक्रम डायरेक्टेड होगा टुवर्ड इलियोप्यूबिक एमिनेंस। डिसेंट अकर होगा अंटिल एंटीरियर बटक टचेस द पेल्विक फ्लोर। जैसा कि आप इसे रिलेट करिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के मैकेनिज्म से तो आप इसको समझ पाएंगे।
सो इसमें डिसेंट तब तक होता रहेगा जब तक एंटीरियर बटक्स जो है पेल्विक फ्लोर पे टच करें. Internal rotation of anterior buttock occur through 1/8 of circle, placing it behind the symphysis pubis. Internal rotation होगा anterior buttock का 1/8 of the circle. Further descent with lateral flexion of trunk occurs until anterior hip hinges under symphysis pubis, which is released first, followed by posterior hip. सो फर्दर डिसेंट होगा विद लेटरल फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक. जो ट्रंक है वो लेटरली फ्लैक्स हो जाएगी तब तक जब तक एंटीरियर हिप सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंडर ना पहुंच जाए. डिलीवरी ऑफ ट्रंक एंड लोअर लिम्स फॉलोज. फिर डिलीवरी ऑफ ट्रंक और लोअर लिम्स फॉलो करेगा. रेस्टिट्यूशन अकर होगा सो दैट द बटक्स ऑक्यूपाई द original position as during engagement in the oblique diameter. जैसे कि रेस्टिट्यूशन नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में भी होता है, वैसे ही रेस्टिट्यूशन यहाँ पे होगा ताकि जो बटक्स हैं वो अपनी ओरिजिनल इंगेजमेंट के दौरान जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें आ जाए, इसलिए ये रेस्टिट्यूशन का प्रोसेस अकर होगा. नेक्स्ट वी कम टू द डिलीवरी ऑफ शोल्डर. इन डिलीवरी ऑफ शोल्डर engagement occur in bisacromial diameter in the same oblique diameter as that occupied by the buttocks soon after delivery of the breech. जैसे ही ब्रीच की डिलीवरी होती है बटक्स बाहर आ जाते हैं, बाइसेक्रोमियल डायमीटर इंगेज हो जाती है सेम ओब्लिक डायमीटर में जैसी कि बटक्स ने ऑक्यूपाई करी थी, वही डायमीटर में ये भी ऑक्यूपाई हो जाती है. डिसेंट अकर होता है विद इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स, जिसकी वजह से जो शोल्डर्स हैं वो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट की अलाइनमेंट में आ जाते हैं. जो शोल्डर्स हैं वो भी जो पेल्विक आउटलेट की डायमीटर है एंटीरियो पोस्टीरियर उसमें ही शोल्डर्स भी लाई करते हैं. द ट्रंक साइमल्टेनियसली रोटेट्स एक्सटर्नली थ्रू 1/8 ऑफ द सर्कल. जो ट्रंक होता है वो अपने आप रोटेट होता है एक्सटर्नली थ्रू 1/8 ऑफ द सर्कल. फिर डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर टेक प्लेस करती है फॉलोड बाय एंटीरियर शोल्डर. जब एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी फिर पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाती है. फिर रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन टेक प्लेस करता है. अनट्विस्टिंग ऑफ ट्रंक होता है पुटिंग द एंटीरियर शोल्डर टुवर्ड राइट थाई इन LSA and left thigh in RSA. What is LSA? Left sacroanterior. RSA is right sacroanterior position. Now the delivery of head. Engagement occur either through opposite oblique diameter as that occupied by buttocks. Engaging diameter of head is suboccipitofrontal, that is 10 centimeter. जो हेड है जब बेबी के बटक्स डिलीवर हो जाते हैं, शोल्डर डिलीवर हो जाते हैं, तो जो हेड की इंगेजमेंट होती है वो या तो अपोजिट ऑब्लिक डायमीटर जैसी की ऑक्यूपाई करी थी बटक्स ने उसमें इंगेज होगा. नॉर्मली इसकी जो इंगेजमेंट डायमीटर होती है सब ओसिपिटोफ्रंटल होती है विच इज 10 सेंटीमीटर. डिसेंट होता रहता है विद इंक्रीजिंग फ्लेक्शन अकर्स. फ्लेक्शन बढ़ेगा, डिसेंट टेक प्लेस करता रहेगा. इंटरनल रोटेशन ऑफ ओसिपुट अकर्स एंटीरियरली. एंटीरियरली जो ओसिपुट है वो इंटरनली रोटेट करेगा थ्रू 1/8 और 2/8 ऑफ द सर्कल, जिसकी वजह से वो ओसिपुट को सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिहाइंड प्लेस कर देगा, बिहाइंड ले आएगा. फर्दर डिसेंट अकर्स अंटिल सब ओसिपुट हिंजेस अंडर सिम्फाइसिस प्यूबिस. आगे फिर और डिसेंट होता रहेगा जब तक कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंडर सब ओसिपुट ना आ जाए. फिर हेड बोन हो जाता है बाय फ्लेक्शन. चिन, माउथ, नोज, फोरहेड, वर्टेक्स एंड ओसिपुट अपीयर सक्सेसिवली.
The expulsion of head from pelvic cavity depends entirely upon bearing down efforts, not at all on the uterine contractions. जो डिलीवरी ऑफ हेड है या एक्सपल्शन ऑफ हेड है पेल्विक कैविटी से, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है मदर के बियरिंग डाउन एफर्ट्स पे, ना कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पे. नाउ लेट्स सी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी. वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी की वजह से इंट्रापार्टम फीटल डेथ हो सकती है, बर्थ एस्फेक्सिया हो सकता है, इंजरी टू द ब्रेन एंड स्कल हो सकता है, एंड बर्थ इंजरीज अकर हो सकती हैं. नेक्स्ट वी कम टू द मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन. नाउ अंडर मैनेजमेंट फर्स्ट कम्स द एंटीनेटल मैनेजमेंट. During antenatal period, identification of complicating factors is done. External cephalic version, ECV is done if not contraindicated at 32 to 34 weeks. एंटीनेटल पीरियड के दौरान जब 32 to 34 वीक्स का गेस्टेशन का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर ECV कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो हम पेशेंट का एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं एट 32 to 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. इफ ECV फेल्स, रिपीट द वर्जन आफ्टर 1 वीक. एक बार अटेम्प्ट किया जाता है ECV का, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन मींस बेबी की जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसको नॉर्मल वर्टेक्स लाने का ट्राई किया जाता है. अगर वो फेल हो जाता है तो वी कैन रिपीट दैट आफ्टर 1 वीक. नाउ नेक्स्ट कम द मैनेजमेंट एट टर्म. प्लानिंग द मेथड ऑफ डिलीवरी व्हेन द टर्म जेस्टेशन इज गोइंग ऑन. जब टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है तब हम प्लान करते हैं मेथड ऑफ डिलीवरी को. 2 मेथड ऑफ डिलीवरी हमारे पास ऑप्शन होते हैं. फर्स्ट इज इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन व्हेन इंडिकेटेड. अगर डॉक्टर ने इंडिकेट करा है, अगर इंडिकेशंस दिख रहे हैं तो इलेक्टिव LSCS किया जाएगा, या वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी व्हेन इंडिकेटेड. और अगर इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं तो वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी भी की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन एंड द हेल्थ कंडीशंस. इलेक्टिव CS प्लान हो सकता है या वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी हो सकती है. सो द इंडिकेशन फॉर वेजाइनल ब्रीच और द सिजेरियन सेक्शन आर. फर्स्ट हम देखेंगे वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी के लिए क्या क्या इंडिकेशन होते हैं. एस्टिमेटेड फीटल वेट 2.5 to 3 kg. जो फीटस है उसका वेट बिटवीन 2.5 to 3 kg के बीच होना चाहिए. सर्विक्स सॉफ्ट और इफेज्ड होना चाहिए. एडिक्वेट मेटरनल पेल्विस होना चाहिए. हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए. डेड फीटस ना हो, माल फॉर्म्ड फीटस ना हो, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस ना हो. सिजेरियन सेक्शन के लिए क्या क्या इंडिकेशंस हैं. ऑल प्राइमरी ग्रेविडा विद ब्रीच. जितनी भी प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स होती हैं सबका हम CS प्लान कर सकते हैं. प्री मैच्योर बेबी, अगर प्री मैच्योर बेबी है तो हम CS प्लान कर सकते हैं. बिग साइज बेबी के लिए प्लान कर सकते हैं. इफ द सर्विक्स इज अनफेवरेबल, सर्विक्स फेवरेबल नहीं है, सर्विक्स एडिक्वेटली इफेज नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, अनफेवरेबल सर्विक्स है तो CS प्लान किया जाता है. इनएडिक्वेट मेटरनल पेल्विस, पेल्विस इनएडिक्वेट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या पेशेंट की बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री रही है पास्ट में, या अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है, मेम्ब्रेन टाइम से पहले रप्चर हो गई है, या फुटलिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो इन ऑल दीज केसेस वी विल प्लान फॉर द CS डिलीवरी. नाउ वी कम टू द मैनेजमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. फर्स्ट स्टेज अगर लेबर की चल रही है उस टाइम पे ब्रीच प्रेजेंटेशन में हमें क्या मैनेजमेंट करनी है. बेड रेस्ट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू प्रिवेंट अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड कॉर्ड प्रोलैप्स. पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है ताकि अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को रोका जा सके, कॉर्ड प्रोलैप्स को रोका जा सके. बेड रेस्ट देनी है. इफ नॉर्मल प्रोग्रेस, लिक्विड डाइट. अगर लेबर की नॉर्मल प्रोग्रेस चल रही है तो लिक्विड डाइट पेशेंट को दे सकते हैं आप, चाय दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं.
सूप दे सकते हैं। इफ डिले प्रोग्रेस और CS नथिंग पर ओरल मीन्स NPO। अगर पेशेंट की प्रोग्रेस ऑफ लेबर डिले चल रही है या CS प्लान किया गया है तो पेशेंट को NPO रखा जाएगा, नथिंग पर ओरल, कुछ भी नहीं दिया जाएगा खाने पीने के लिए। एडिक्वेट पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दिया जाएगा ताकि वो मेंटेन रहे। Vaginal examination should be performed only when membrane ruptures to exclude cord prolapse. पेशेंट का विजाइनल एग्जामिनेशन तभी किया जाना चाहिए जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए। हम पीवी करके ये देखेंगे कि कोड प्रोलैप्स तो नहीं है। एडिक्वेट सीडेशन एंड एनाल्जेसिया टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर बियर डाउन। पेशेंट को एडिक्वेट सीडेशन और एनाल्जेसिक्स दिए जा सकते हैं ताकि वो प्रीमेच्योर बियर डाउन ना करे। नेक्स्ट वी कम टू द मैनेजमेंट ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। 3 types of vaginal breech deliveries are as follows. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है? सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है विद फुल सर्वाइकल डायलिटेशन टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस। सो सेकेंड स्टेज में डिलीवरी टेक प्लेस करेगी। सो 3 टाइप ऑफ वेजाइनल ब्रीच डिलीवरीज होती हैं। फर्स्ट, स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी। सेकेंड, असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी। थर्ड, ब्रीच एक्सट्रैक्शन। सो फर्स्ट हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी। स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी में फीटस का एक्सपल्शन बहुत थोड़ी असिस्टेंस के साथ हो जाता है। हमें फीटस को सपोर्ट देना होता है, इसके अलावा थोड़ी सी असिस्टेंस देनी होती है और फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है। दिस मेथड शुड नॉट बी एनकरेज। ब्रीच डिलीवरी में हमें ये मेथड एनकरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इसमें असिस्टेंस बहुत थोड़ी दे रहे हैं, सिर्फ फीटस को सपोर्ट कर रहे हैं। सो ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए हमें ये मेथड एनकरेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी। इन असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ द फीटस इज बाय असिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। अगर हम असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी की बात करते हैं तो इसमें फीटस की डिलीवरी असिस्टेंस के द्वारा होती है। शुरुआत से लेके डिलीवरी तक हमें असिस्टेंस देनी होती है। पेशेंट्स बटक्स आर ब्रॉट टू द एज ऑफ द टेबल। जो डिलीवरी टेबल है वहां उसकी एज तक हमें पेशेंट के बटक्स को ब्रॉट करना है। लेग्स लिथोटमी पोजीशन में होंगे। शी इज कैथेटराइज बाय स्टेराइल प्लास्टिक कैथेटर। पेशेंट को कैथेटराइज करना है। लिबरल मीडियोलेटरल एपिजियोटमी इज डन एट क्राउनिंग ऑफ द बटक्स with 1% xylocaine analgesia। पेशेंट को एपिजियोटमी देनी है, जैसे ही क्राउनिंग होगी उस पे उसे मीडियोलेटरल एपिजियोटमी दे देनी है 1% xylocaine analgesia देते हुए। बेबी इज अलाउड टू डिलीवर्ड बाय इट्स ओन अप टू द अम्बिलिकस। फिर बेबी को अलाउ करना है कि वो अम्बिलिकस तक का, बटक से लेके अम्बिलिकस, सॉरी गाइस छोटा सा परिंदा आ गया था तो मैंने उसे नीचे फेंक दिया है। ओके लेट्स कंटिन्यू। सो हम कहाँ थे? बेबी इज अलाउड टू डिलीवर बाय इट्स ओन अप टू द अम्बिलिकस। बटक से लेके अम्बिलिकस तक बेबी को अलाउ करना है कि वो अपने आप धीरे धीरे डिलीवर हो जाए। सब्सिक्वेंटली द शोल्डर इज क्राउंड ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज्ड पोस्टीरियर आर्म फॉलोड बाय एंटीरियर आर्म। फिर बेबी का जो शोल्डर है वो क्राउन होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो शोल्डर क्राउन होगा, धीरे धीरे वो रिलीज होगा, पहले एंटीरियर आर्म और फिर पोस्टीरियर आर्म रिलीज हो जाएगा। थर्ड टाइप होता है ब्रीच एक्सट्रैक्शन। ब्रीच एक्सट्रैक्शन मीन्स व्हेन द एंटायर बॉडी ऑफ फीटस इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑब्स्टेट्रिशियन विद मिनिमल एड फ्रॉम द मदर in an emergency situation such as fetal distress। जब किसी इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में, अगर पूरे फीटस की बॉडी को ही कोई ऑब्स्टेट्रिशियन मिनिमल एड्स यूज करते हुए एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, डिलीवर करवा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो हम उसे ब्रीच एक्सट्रैक्शन कहते हैं।
Now we see the delivery of after coming head in vaginal breech delivery. ये कुछ कॉमन मेथड हैं जो यूज में लाए जाते हैं इसके लिए. पहला है बर्न मार्शल मेथड, सेकेंड फोर्सेप्स डिलीवरी, थर्ड जो फ्लेक्शन एंड शोल्डर ट्रैक्शन. नाउ वी विल सी वन बाय वन व्हाट आर दीज मेथड्स. सो बर्न मार्शल मेथड में baby's trunk is allowed to hang by its own for a while but never more than 1 minute. हमें बेबी की ट्रंक को हैंग करने के लिए, अपने आप हैंग करने के लिए अलाउ करना है, बट 1 मिनट से ज्यादा नहीं कभी भी करना. When nape of the neck is visible under pubic arch, baby's trunk is gradually lifted up and swing up toward mother's abdomen by holding baby's legs above the ankle, thus head is delivered. जब बेबी का नेप ऑफ द नेक आपको प्यूबिक आर्च के अंडर विजिबल हो जाए, बेबी की ट्रंक को धीरे धीरे लिफ्ट अप करना है और मदर के एब्डोमेन की तरफ ऊपर स्विंग अप करना है. बेबी की लेग्स को आप होल्ड करेंगे अबव द एंकल और इस तरीके से बेबी का हेड डिलीवर हो जाएगा. Meanwhile, the left hand is used to guard the perineum. इसी दौरान आपका जो लेफ्ट हैंड है वो यूज होगा पेरिनियम को सपोर्ट करने में, पेरिनियम को गार्ड करने में. गाइज आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसमें बर्न मार्शल मेथड यूज किया गया है डिलीवरी कराने के लिए. इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से लेग्स को होल्ड करके मदर के एब्डोमेन के टुवर्ड जैसे डिलीवर करवाया जा रहा है. नेक्स्ट इज फोर्सेप्स डिलीवरी. Forceps can be used as a routine and considered as best method if there is a skilled person. अगर skilled person है तो forceps डिलीवरी को रूटीन में और बेस्ट मेथड कंसीडर करा जाता है. Baby is lifted up by assistant by grasping baby's ankle. बेबी की एंकल को पकड़ते हुए, ग्रैस्प करते हुए बेबी को लिफ्ट अप किया जाता है असिस्टेंस की हेल्प से. फोर्सेप इज अप्लाइड फ्रॉम बिलो द ट्रंक ऑफ बेबी ऑन बेबीज हेड एट लेवल ऑफ बायपैराइटल डायमीटर. फोर्सेप अप्लाई किया जाता है बेबी के ट्रंक के बिलो से और बेबी के हेड के लेवल तक, बायपैराइटल डायमीटर जो है उस लेवल को मेंटेन करते हुए फोर्सेप अप्लाई किया जाता है. हेड को जेंटली डिलीवर कराया जाता है विद माउथ अपियरिंग एट द वल्वा. बेबी का जो माउथ होगा वो वल्वा की तरफ अपियर कर रहा होगा और फिर हम माउथ को म्यूकस सकर से एस्पिरेट कर लेते हैं. कहने का मतलब है कि फोर्सेप की हेल्प से ब्रीच का डिलीवरी करवाई जाती है. थर्ड इज जॉ फ्लेक्शन एंड शोल्डर ट्रैक्शन. In this, head lying above the pelvic outlet, baby is placed on the supinated left forearm with the limbs hanging on the either side. इसमें बेबी को प्लेस किया जाता है, जो हेल्थ वर्कर है, जो डॉक्टर है, उसके लेफ्ट फोर आर्म पे बेबी को प्लेस किया जाएगा, जिसमें कि ऐसे इस तरीके से कि उसकी जो लिम्स होंगी वो दोनों तरफ हैंग कर रही होंगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो इस पिक्चर में. इस तरीके से बेबी को होल्ड किया जाता है. नाउ द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड आर प्लेस्ड ओवर मैलर बोन्स ऑन आइदर साइड. दिस मेंटेन्स फ्लेक्शन ऑफ द हेड. जो हेल्थ वर्कर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की बेबी की मैलर बोन्स पे आइदर साइड पे प्लेस करते हैं ताकि हेड का फ्लेक्शन अच्छे से मेंटेन किया जा सके. द रिंग एंड लिटिल फिंगर्स ऑफ प्रोनेटेड राइट हैंड आर प्लेस्ड ऑन द बेबीज राइट शोल्डर एंड इंडेक्स फिंगर इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट शोल्डर and middle finger is placed on suboccipital region, ताकि बेबी को अच्छे से होल्ड किया जा सके, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया था. नाउ द ट्रैक्शन इज गिवन इन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. कब तक ट्रैक्शन देंगे डाउनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में?
till the nape of the neck is visible under pubic arch. फिर हम असिस्टेंस देंगे, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देंगे ड्यूरिंग दैट डिलीवरी टू मेंटेन द फ्लेक्शन. Thereafter, the baby is carried in upward and forward direction toward mother's abdomen, releasing the face, brow, and lastly, the trunk is depressed to release the occiput and vertex. उसके बाद में बेबी को हम कैरी आउट करते हैं अपवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मदर के एब्डोमेन की तरफ, ताकि उसका फेस ब्रो रिलीज हो सके, और लास्ट में हम ट्रंक को थोड़ा सा डिप्रेस करेंगे ताकि बेबी का ओसिपुट वर्टेक्स एरिया रिलीज हो सके. द मेथड शुड बी एम्प्लॉयड प्रेफरेबली अंडर जर्नल एनेस्थीसिया. ये जो थर्ड मेथड है ये जीए के अंडर ही परफॉर्म किया जाना चाहिए. So this was all about the breech delivery or the breech presentation delivery. Thanks for watching. I hope आपको समझ आया होगा ये वीडियो. Kindly make your notes and write down in the comment box if you want me to make video on some other difficult topic. Goodbye. Good night.